tell me about yourself. Yes, hello sir. My name is Mahi and I am from Devabhoomi, Uttarakhand, Kedarnath. I have done my graduation in 2009 and became a trainer of English and communication. And I have helped more than hundreds of students to learn and overcome their fear about English language. Hmm. Sir, my ability is to learn anything faster and make good relationships with people and communicate effectively with them. So what I'm looking for, a company where I can add value Hmm. and produce a positive return on investment. Sir, is this company looking for? Okay, yeah, this company is only looking for those guys who can become the asset, good asset for the company. So, Thank you, sir. as you have said, you are the trainer, English trainer, right? Yeah, right. Okay. So, how many guys you have trained yet? More than hundreds of them. Okay, you have trained more than hundreds of guys. Okay. So, why you want to go into sales then? Exactly. Sir, during my college education, I wanted to improve. I wanted to improve my English communication and Hmm. as well my personality. Hmm. So I thought to join a coaching center. So I joined that coaching center. 3 months and 4 months I have learned there, and Mm-hmm. it was not enough for me to improve myself that much. So I learned somewhere. If you want to become a best version of yourself, so start teaching people whatever you know. So Hmm. I did the same thing. I started teaching people about that particular thing which I wanted to know. So I Hmm. have improved myself that much of, and now I think that I have done very good things there. I have improved my skills. Now I want to take sales as a my career because in a sales, communication and personality, Hmm. your personality matters a lot. So that Okay. helps me Mm-hmm. come here. Yeah, So, as you said that you have done all this to explore yourself. Okay. exactly. So, like you have applied for the sales field, right? So, Right. what do you think that you have learned for the sales field? Why you want to come into sales? That like you can become a teacher also, but why you want to go into sales? Exactly. Sir, why I want to come in sales? Sales is the only one thing where I can understand people and I can give them best Hmm. and best solution. In Mm-hmm. education, I have been working. I have been teaching people. I have been training them Hmm. overcome their fear about English language. Yes, Mm-hmm. I think this is a very great platform Byju's is providing me to Hmm. become my best version here to Hmm. mentor people. Like if I'm giving a best solution to that child who Hmm. is who wants a good education as Hmm. well. Hmm. Here, the sales is the only one profession. It is Hmm. driven by your performance. It is not like you have got a permanent job here. You Hmm. have to improve daily. So I want to learn daily new things. So that is the perfect. The platform is very perfect for me Hmm. to learn and upgrade myself on a daily basis. Okay. That is I want, and that's why I have chosen this as a Hmm. career. ओके फाइन इनफ अच्छा ठीक है तो आप क्या कहते हैं इसलिए आना चाहते हैं तो वैसे अभी आप करंटली कहाँ से हैं I belong to Dehradun right now. I'm in Dehradun. देहरादून ओके सो जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रेज्यूमे में आपने जो है कंप्लीट करा है अपना एजुकेशन 2019 में राइट Exactly, sir. सो 19 के बाद अभी 2021 आ गया सो आपने इतने दिनों तक क्या किया इतने साल तक क्या किया Right. During the graduation, I started taking students. So हम्म after the graduation, I just took the profession permanent, means full time. Then हम्म I taught students for one year, like the corona, till the corona came in India. And हम्म after that, I just went to my home, my village, and I हम्म started teaching their students as a tuition I took. So I have been taking tuition at my home till हम्म now. So, like in Corona days, how you taught these students? Like in Corona days, everyone are in their home. So, how you taught all these things to the child? Exactly. Yes. Uh, Actually, where I live, it's a rural area, means it's a village area. Hmm. In the village, everybody was safe, and when whoever was coming from outside, so they Hmm. were.
being quarantined at the Hmm. same time. Hmm. So after a while, I did not start teaching at the same time when Corona came, but Hmm. from June and July, from Hmm. July I started teaching students which were near about me. So I didn't go for so far. I just taught, Hmm. started teaching students Hmm. who were near about me. Yes, sir. Okay, That was so not. suppose I'm a child, okay, and I don't know how to speak English. Okay, start Mm, teaching me. exactly. You are a child and you don't know how to speak. So first Yeah. of all, yeah, sir, listen to me. Hmm. Do you know how do you speak Hindi and Hmm. how या do हाउ टू स्पीक हिंदी, मुझे आती है, हिंदी बोलनी आती है। यस सर। तो सर आपने हिंदी कैसे सीखी? आप मुझे बता सकते हैं क्या आपको हिंदी आपके घर में किसी ने अखबार पढ़ा के सिखाई है? हम्म। हिंदी की ग्रामर आपको किसी ने सिखाई है? आज तक किसी ने सिखाई है आपको? नहीं, सुन के सीखी मैंने तो। नहीं सिखाई। हम्म। बिल्कुल। तो सर एक्चुअली में क्या होता है ना, ये जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज है। इसको सीखने के 3 फंडामेंटल होते हैं किसी भी लैंग्वेज को। सबसे पहला होता है लिसन, उसके बाद होता है उसके ऊपर में लिसन, रीड एंड स्पीक। तो हम्म। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि कोई ग्रामर नहीं पकड़नी है, सिर्फ सुनना है पहले। पहले सुनना है। जैसे बहुत सारे लोग गाली बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, तो क्या उसको गालियाँ कोई स्कूल में सिखाता है? नहीं सिखाता है। लेकिन होता क्या है उस टाइम पे, जब हम गालियों को सुनते हैं, तो हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको रिपीट करते हैं अपने माइंड के अंदर और जब हमें कभी मौका मिला, तो हमने फिर बोल दिया। यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। तो आपने ठीक। लैंग्वेज को पहले सुनना है, ओके ओके उस ओके, तरीके से। सो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। सो अभी ना मुझे नहीं आती इंग्लिश, आप मुझे कुछ बोलो तो मैं देखता हूँ कि मैं कैसे इंग्लिश सीखता हूँ, बोलो। हाँ, देखो इंग्लिश आप पहले दिन से नहीं सीखोगे सर। इंग्लिश हम्म। एक लैंग्वेज है, तो आपको प्रोसेस के हिसाब से सीखनी पड़ेगी। पहले हाँ, दिन तो आप आपको आप बोलो ना फिर क्या कुछ, कैसे सिखाते तो बोलो, मैं सुनूंगा, सीखूंगा, देखूंगा। राइट, राइट। पहले दिन मैं आपको बेसिक ही बताऊँगा कि पहले दिन आप क्या करेंगे। सबसे हम्म। पहले जो भी आज आप बैठे हो कहीं पे सर, अपने आस-पास देखो सारी चीज़ें। हम्म। सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो 1 मिनट के लिए। हम्म। उसके बाद आपने जितनी भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, तो हम्म। उनका नाम बताओ और उनका नाम जो है, वो आप हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बताओ। तो वो जो ओके। सारी आपने ऑब्जेक्ट जो है, वो जो हम्म। ऑब्ज़र्व किए हैं, उनका नाम बताओ। तो हम्म। फिर यहाँ से धीरे-धीरे करके, स्टेप करके मैं आपको आगे सिखाऊँगा। तो एक बार ओके, आप ऑब्ज़र्व कर लो। ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ माही को, ओके, माही एंड लैपटॉप अदर को, थिंग्स लाइक हुँ, जूम और मीटिंग, कुछ ऑब्जेक्ट जूम मीटिंग, ऑब्जेक्टिव्स जो आपके आपके रूम में जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऊपर-नीचे, इधर-उधर जहाँ पे आप बैठे लाइट्स हैं, हैं, जिसके ऊपर आप लाइट्स हैं, राइट। ईयरफोन्स, हुँ, 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 हेडफोन्स, राइट। शर्ट। सो ओके ओके, सो अब और क्या? आप ऐसे सिखाते हो, राइट? ठीक है, चलो, राइट। ये चीज़ अब मैं ये आपकी जो समझ गया। हाँ, ओके ओके, फाइन इनफ, फाइन एग्ज़ैक्टली। इनफ। ठीक है, अब ना मुझे ये बताओ कि एक बच्चा है, ठीक है, जो कि अभी उसके 2 महीने बाकी हैं, ठीक है, 2 महीने बाकी हैं, वो अब फोर्थ क्लास में जाने वाला है। राइट। अ चाइल्ड इज इन थर्ड स्टैंडर्ड एंड ओनली 2 months आर लेफ्ट, ओके, एंड अब यस सर। उसको फोर्थ में जाना है, फोर्थ क्लास में, राइट? हुँ, सो हुँ, हाउ विल यू हुँ, सेल द कोर्स? ओके। बायजू कोर्स, राइट? राइट। ओके। अ, हेलो सर, हेलो। आई एम माही एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम द बायजू लर्निंग ऐप। So am I talking to Tarun or Tarun's father? You're talking to Tarun's father. Okay, great, sir. Hmm. Sir, there has been a registration with a name of Tarun. So, Hmm. sir, may I know, did you download the Baiju app or your son has downloaded it? नहीं, मुझे नहीं पता, वो तो बच्चे ने डाउनलोड कर लिया होगा। अच्छा, अच्छा, बच्चे ने डाउनलोड किया होगा। ठीक हम्म। है, सर। तो सर एक्चुअली में क्या है ना, द किड्स हु स्टडी विद द हेल्प ऑफ बायजू लर्निंग ऐप, जो हम्म। भी बच्चे क्या है, इसको इंस्टॉल करके बायजू से पढ़ते हैं, ओके। तो वहाँ पे उनको बायजू जो लर्निंग ऐप है, हम्म। एक पर्सन को असाइन करते हैं। वो पर्सन आपके लिए इस आपके केस में मैं हूँ। तो सर यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके बच्चे की जो परफॉर्मेंस है हम्म। एंड उनके जो लर्निंग पैटर्न है, हम्म। उनको एनालाइज करके बच्चे को क्लियर रोड मैप देते हैं। लेकिन मुझे तो जहाँ पे पता ही सर नहीं है ना ये क्या है बायजूस बायजूस। मैं अपने बच्चे से पूछूंगा, आप एक बार पूछूंगा एंड उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा कि क्या है, ठीक है? ओके, बाय। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली। वेट सर, वेट 1 सेकेंड, एक मिनट आपका लेना चाहूंगा। आप उनसे एक बार जरूर कंफर्म करिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो डाउनलोड किया है वो जो वहां से सीख रहे हैं, तो कहीं ना हम्म। कहीं आपकी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस चीज को देखना कि आपका बच्चा कितना सीख रहा है, कितना पढ़ रहा है, बिकॉज कहीं ना हाँ, कहीं अभी उसका कंफ्यूजन ना आप। ट्यूशन लगा है, एक्चुअली उसका ट्यूशन लगा है, तो मैं अपना थोड़ा बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अपना बिजी रहता हूँ, ट्यूशन पढ़ता है, तो अभी इतना तो मैं नहीं देख पाऊंगा, टाइम नहीं रहता है, ठीक है। सो आप मुझे बाद में कॉल करना, मैं बच्चे से पूछ लेता हूँ, उसके बाद आप मुझे कॉल करना। चलो बाय। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बाद में भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, जहाँ पे मैं आपको आपने मुझे बताया कि आपके बच्चे का मतलब ट्यूशन है अभी, राइट सर? हम्म। हाँ, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि किस टाइम पे आपसे बात हो सकती है? शाम मैं को या आपको सुबह में बता सर? दूंगा, अभी ऐसा कोई है नहीं, अभी मुझे लेट भी हो रहा है। आपको मैं अच्छा, बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरे बच्चे को ठीक है ट्यूशन है, सर। ट्यूशन पढ़ता है वो, हम्म हम्म ठीक है। हम्म तो हम्म आप हम्म। बाद में कॉल करना मुझे, ठीक है। चलो। ठीक है सर, एक सेकंड सर, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो ये कॉल है, ये तभी दी जाती है जब अपॉइंटमेंट बस फिक्स हो जाती है। जैसे आपकी अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ से फिक्स हुई थी, तो ये नहीं अब हुई थी, आपको नहीं तभी नहीं, दी जाएगी। मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं, हो सकता है मेरे वो बच्चे ने कॉल कर दिया होगा, मेरे बच्चे ने गलती से कॉल लगा दिया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, चलो बाय। राइट राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एक बार बस आप अपना टाइम कंफर्म कर लीजिए, उसी हिसाब से आपको फिर नहीं नहीं, कॉल अभी की मेरे जाएगी, आपको अभी अब डिस्टर्ब नहीं मैंने किया आपको जाएगा। बोल दिया ना, कि मैंने आपको बोल दिया ना अभी कि नहीं है मेरे पास हम्म, टाइम। तो हाँ, अभी हम्म। मैं अपने बच्चे से पूछूंगा, तब आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है सर, बाय। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, आप एक बार मैसेज कर लेना, राइट? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके बाय। आ, थैंक यू। तो तुम ऐसे कैसे करोगे, तुम्हें तो आती ही नहीं है सेल्स करनी। सर यहाँ पे अगर टाइम ही नहीं है तो मैं उसको समझा के करूंगा तो क्या? फिर मतलब ऐसा ही वो होता है ना, फिर ऐसे तो सुनने के सेल लिए ही ही नहीं कर तैयार नहीं पाओगे है। तुम। नहीं, तुम तो अगर वो गलत सुनने फील्ड के में लिए हो। रेडी ही नहीं। यू आर इन रॉन्ग नहीं, फील्ड। गलत। एग्जैक्टली, आई एम नॉट इन रॉन्ग फील्ड सर, यू आर राइट सर, बिकॉज अभी आपने जिस तरीके से मुझे बताया कि आप एक बार अगर सुनने के लिए रेडी नहीं हो, तो हम अगले पर्सन को फिर किस तरीके से सुना तो ऐसे सकते कस्टमर तो सुनेगा ही नहीं, कस्टमर नहीं हैं। सुनेगा ना, तो फायदा नहीं एग्जैक्टली है। सर। तो आप गलत फील्ड में हो, आपके पास आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, आप में कॉन्फिडेंट। राइट आप सर। आप बट चीजें नहीं कर सकते ये हो। अगर आप एक सवाल नहीं कर पाओगे तो कैसे करोगे, आप ये बताओ। क्या आप इंग्लिश हम्म पढ़ाते हम्म, हो। हम्म। ये सर, इससे ये कोई रिलेट नहीं करता है कि मतलब हम्म। मैं जो इंग्लिश पढ़ाता हूँ उसमें इस तरीके से होता हम्म। है, जैसे कभी कभी किसी के पास टाइम रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस में यहाँ पे कोई बात सर नहीं, हम कोई बात नहीं, एक ठीक है। पर्सन को कोई बात नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, मुझे अब ना ऐसा करो कि खाली बोतल है ना, बेच के दिखाओ। खाली बोतल। हम्म। राइट सर। सर एक्चुअली आपके घर में आप पानी मतलब आपके घर में आप पानी किस में रखते हैं, मतलब किससे पीते हैं, आरओ से पीते हैं या नॉर्मल पानी पीते हैं? हम आरओ से ही पीते हैं। आरओ से पीते हैं, ठीक है सर। हम्म। सर, हाँ, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है। ठीक है सर। आप वैसे फ्रिक्वेंटली कितनी बार पानी पीते हैं, एक दिन में कितने लीटर पी हाँ, लेते हैं आप? नॉर्मल एक मैं बोतल में भर के रख लेता हूँ, और जब भी प्यास लगती है पी हम्म, लेता हूँ। आप बताइए, मुझे कॉल किस लिए करा आपने। ठीक है सर, कॉल मैंने इसलिए किया आपको कि आप मुझे बता सकते हैं कि किस बॉटल में आप पानी पीते हैं, मतलब प्लास्टिक की है या किसी और चीज की है वो? हाँ, स्टील की है, स्टील की है। स्टील की है, राइट? हम्म। तो सर आप एक दिन में 1 लीटर ही मतलब उस स्टील की बॉटल से पीते होंगे, राइट? हम्म। आप हाँ। तो सर वैसे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? मेरा फेवरेट, इससे बोतल का क्या हम्म, लेना देना। नहीं, बस जस्ट पूछ रहा हूँ सर। नहीं तो इससे क्या मतलब है, बताओ, मैं क्यों बताऊं। सर बस इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि जो ये बोतल है, ये तो उस तरीके से जो मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात। बोतल में पानी, हम्म, तुम मुझे क्या करने आए हो यहाँ पे, क्यों कॉल करा है तुमने मुझे। जो सर आपके फेवरेट सेलिब्रिटी है, अमिताभ तो बच्चन जी, फेवरेट वो इस सेलिब्रिटी बॉटल का से पानी पीते बोतल हैं। से क्या लेना देना है, ये बताओ मुझे। वो जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटी है, वो इस बॉटल से पानी पीते हैं, क्या आप उस बॉटल को अपने पास रखना चाहेंगे जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटी कौन। इस्तेमाल करते हैं? आपको मेरा सेलिब्रिटी तो पता ही नहीं है, तो मैं तुम तो मेरा तो कोई मेरा फेवरेट कोई सेलिब्रिटी है ही नहीं। ओके, कोई आपका सेलिब्रिटी नहीं है। नहीं है। आप आपके कोई फेवरेट सेलिब्रिटी नहीं है, डजंट तो मैटर सर। हम्म। लेकिन जो अमिताभ बच्चन जी है, वो इस बॉटल से पानी पीते हैं, क्या आप इस बॉटल को लेना चाहेंगे अपने पास, या आपके नहीं, मेरा घर में? वो अमिताभ बच्चन मेरे फेवरेट ही नहीं है। ओके सर, ओके ओके, सॉरी। कोई बात नहीं। सॉरी, मेरे को ओके, जाना नो है। प्रॉब्लम सर। हम्म। हम्म। सॉरी, यू आर आपको जाना लूजिंग। है, लेकिन आप
आपको, आप नहीं कर आपके पा पास रहे जो हो, बॉटल है ना। आप नहीं कर पा रहे हो, सॉरी। ओके ओके सर, ठीक है आप सर, ओके। सेल्स के लिए नहीं बने हो। ठीक आपको बातें है। बुरी लग जा रही हैं, कैसे करोगे? नहीं, नहीं सर, बातें मुझे बुरी नहीं लग रही हम्म। सर। एक्चुअली में ये तो प्रोसेस है सीखने का, हर दिन अब इसी तरीके से मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा, जहाँ पे मैं हम्म। और ज़्यादा हर दिन लर्न करके, ऐसे तो ये कोई भी मेरा एक कस्टमर, अगर आप जिस ऐसे तरीके से करोगे मैं तो वो हर तो दिन सीखूंगा। इरिटेट होगा। कस्टमर तो इरिटेट हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं नहीं है सर। ना। एग्जैक्टली सर। चलो ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, इस ठीक है, तरीके से फास्ट। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तुम यस सर। कहीं कोर्स बेचने गए हो किसी के घर में, ठीक है। वहाँ हम्म, पे जो है फादर जो है, ठीक है, उस जगह पे है नहीं, ठीक है। हम्म, हम्म, एंड उनके जो है ठीक है जो रिलेटिव हैं, ठीक है, मामा बैठे हैं, ठीक है। और मम्मी मम्मी जो है ये ऑनलाइन स्टडीज के खिलाफ है, कैसे बेचोगे? ओके। एंड उनके जो बच्चे हैं उनकी डिटेल्स हाँ, वो फिफ्थ या क्लास में फिर, है, फिफ्थ क्लास में है और टॉपर है। अच्छा, फिफ्थ क्लास में टॉपर है लेकिन पापा घर पे नहीं है, हाँ, मामा जी, राइट। मम्मा है और वो एंड खिलाफ है, बायजूस के ही ओके खिलाफ है, पड़ोसी वालों ने भड़का ओके। दिया है। राइट सर। तो मुझे वहाँ पे को बायजूस के कोर्स को मतलब सेंड हाँ। करना है। हम्म। ठीक है सर। आप मतलब मामा है ना बच्चे की? आप कॉल करो, मैं मामा हूँ, ओके ओके कॉल राइट। करो। हेलो सर। हेलो। माय नेम इज माही सर एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम द बायजू लर्निंग ऐप। एम आई टॉकिंग टू पंकज और पंकज फादर? हाँ, मैं पंकज, मैं उनका ब्रदर बात कर रहा हूँ, बताओ। ओके ओके ब्रदर। तो ब्रदर, पंकज के ब्रदर जी, हम्म। आपके पापा से अभी बात हो सकती है? नहीं, अभी तो ड्यूटी पे हैं। ओके। घर कितने बजे आते हैं? घर रात को आते हैं, वो 9 बजे आते हैं। आपने कॉल क्यों करा है? ओके जी। ब्रदर, आपके छोटे भाई पंकज के नाम से एक रजिस्ट्रेशन हमारे बायजू लर्निंग ऐप के अंदर है, और वो वहाँ पे मैथ्स एंड साइंस की वीडियोस देख के बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। उनका जो एनालिटिक्स है उसको हम्म। हमने हम्म। देखने के बाद में आपको कॉल किया। तो आपके जो ब्रदर है, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनको बायजू की ओर से शॉर्टलिस्ट किया गया है। हम्म। एंड उस शॉर्टलिस्ट करने के बाद में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम्म। हमारे यहाँ पे जो काउंसलर है उनसे हम्म। वन ऑन वन इंटरेक्शन करने। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग में आपके पापा से मुझे बात करनी है। तो आप एक बार जब वो घर पे आएंगे 9 बजे, हम्म। आप एक बार मुझे उनकी बात करा दें, ठीक है? ठीक है, जब आएंगे तो मैं करवा ओके दूंगा। ओके, बाय। ओके ओके, ठीक। जब थैंक यू। आएंगे तो मैं करवा दूंगा, बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो तुम नहीं कर पाओगे ये तो, सॉरी। सर, सर एक्चुअली मैं, अब उनके ब्रदर है तो नहीं कर उनके जो पाओगे, बड़े भाई है, नहीं कर उनके जो पाओगे। बड़े भाई उनसे बात करने का तो कोई वो भी नहीं था, हाँ, तो नहीं क्योंकि कर जो पाओगे डिसीजन ना, लेंगे वो तो अपने पापा ही। तुम्हें हाँ, बात ही नहीं उनके करना जब आता है। पापा आएंगे तो उनके जो पापा आएंगे फिर उनसे हम बात करेंगे आज। हाँ, तो उनके जब पापा आएंगे से। तब करना है ना, ठीक है। हाँ, 9 बजे। ठीक है, तो क्यों, मैं तुम्हें क्यों हायर करूं बायजूस के लिए, ये बताओ। हाँ, एग्जैक्टली, ग्रेट क्वेश्चन सर। सर, आई एम नॉट लुकिंग फॉर टू फिल अ पोजीशन, आई हम्म। एम लुकिंग फॉर अ करियर। तो हम्म। बायजूस के अंदर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि वहाँ पे मैं अपनी जो कुछ कुछ स्किल्स है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एजुकेशन के फील्ड में मैं पहले से ही हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म के अंदर मैं एक करियर को देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं हम्म। अपनी पर्सनल स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स को यूटिलाइज करके इस कंपनी को और अच्छा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे, मेरा जो प्रीवियस कनेक्शन है बच्चों से एंड पेरेंट्स से इस फील्ड के अंदर में, मैं उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे एज यूटिलाइज ए करना करियर के चाहते तौर पर इस चीज़ को देखना चाहता हूँ। यस सर। हो। ओके, तो अभी लेकिन तुम में तो स्किल ही नहीं है ना, तुमने क्या सीखा है फिर, इतने सालों में क्या करा तुमने, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाए हो, क्या करा तुमने? हाँ सर, मेरी जो स्किल्स है बेसिकली मैं हम्म। पेरेंट्स से और जब बच्चों से काउंसलिंग होती है इसके रिगार्डिंग में मैं उनसे एकदम से मतलब जो गुड रिलेशनशिप स्किल है वो हम्म। उसको डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे, और भी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि जितना मैंने सीखा है वो काफ़ी नहीं है।
मतलब एक आगे बढ़ने के लिए मुझे हर दिन सीखना पड़ेगा। तो बायजू वो प्लेटफ़ॉर्म मुझे प्रोवाइड कर रहा है एज़ अ करियर बिल्ड करने इसके लिए मैं यहाँ पे आके हर दिन सीखता तुम मुझे ना ये हूँ। बता दो कि मैं तुम्हें क्यों हायर करूं, क्या ऐसा खासियत है तुम में, क्या क्या क्यों करूं मैं तुम्हें हायर, क्यों, क्या खासियत है, ये बताओ मुझे। क्यों सेल्स में जाना चाहते हो? ना तुम राइट। में सेल्स की कोई मुझे बात नजर आ रही है, ना कुछ नजर आ रहा है। हुँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस में तुम इतना डाउन हो जा रहे हुँ, हो। ठीक है, चीजें नहीं हो हुँ, पा हुँ, रहे हो, हुँ, तो हुँ। क्यों तुम्हें मैं हायर करूं? एग्ज़ैक्टली सर। सर आप मुझे इसलिए हायर करेंगे बिकॉज़ जो मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड है, एक तो पूरा एजुकेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे मैं डील करता था बच्चों से एंड उनके पेरेंट्स से, उनको हम्म। अंडरस्टैंड करने में और उनको एक राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। बायजू के अंदर में जो जो मेन हमारा जो रोल है, वो यही है कि बच्चों को अंडरस्टैंड करके उनकी प्रॉब्लम्स को कैच करना एंड उनके पेरेंट्स जो है उनको वही चीज़ हम्म। उनके सामने प्रेज़ेंट करके अपने बायजू के जो हमारे कोर्सेज़ हैं, उनको एज़ अ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसमें मेरा पिछले 1 साल से जो मैं वर्क कर रहा हूँ, वहाँ पे जितना मैंने सीखा है, उस हम्म। स्किल्स को मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ कंपनी के अंदर में। दैट्स व्हाई सर यू शुड हायर मी पर्टिकुलर स्किल। ओके, सो बेसिकली तुमने अपने ग्रेजुएशन में क्या करा है? सर ग्रेजुएशन में हम्म। मैंने अपना बीएससी करा है। बीएससी करा है, सो अब बीएससी हुँ, आपने करा है एंड आप बीएससी में इतनी अच्छी अच्छी जॉब पा सकते हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं सेल्स में? इतनी हेक्टिक जॉब है, 12 घंटे की हुँ। जॉब है, तो मतलब बीएससी करके कोई क्यों जाना चाहेगा सेल्स में? एग्ज़ैक्टली सर, बीएससी क्यों बहुत करी अच्छा फिर? क्वेश्चन आपने पूछा। हुँ, हुँ, हुँ। हम्म। सर एक्चुअली जब मैंने बीएससी करी थी तो मैंने फिर कभी नहीं सोचा था मैं सेल्स के फील्ड में जाऊँ। लेकिन हम्म। बीएससी के दौरान मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जॉइन किया तो वहाँ पे मैंने जब उसको जॉइन करने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी एंड हम्म। सेलिंग के बारे में मैंने सीखा। तो सर एवरीबॉडी इज़ सेलिंग एंड वी हैव बीन सेलिंग सिंस आवर चाइल्डहुड। हम्म। अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं वहाँ पे अपनी एजुकेशन को सेल कर रहा हूँ। मैं एक लॉयर हूँ तो मैं अपनी लॉ की एजुकेशन को सेल कर रहा हूँ। एंड हम्म। मैं अगर मैं किसी को शादी के प्रपोज़ल के लिए भी जाता हूँ तो सर मुझे अपनी क्वालिटीज़ को वहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टीज़ को सेल करना पड़ता है। तो हम्म। मुझे ये फील्ड इसलिए अच्छा लगता है, मैं इसमें इसलिए जाना चाहता हूँ हम्म। बिकॉज़ यहाँ पे जाके मैं एक राइट सॉल्यूशन जो लोगों का होता है उसको सेल करना चाहता हूँ। एंड हम्म। एजुकेशन में एक नई जो बेंचमार्क पे जो बायजू चल रही है जो कंपनी, उसके हम्म। साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं हम्म। इसके सेल्स से इसके अंदर इसलिए मैं सेल्स के अंदर आना चाहता हूँ। ये सर है। ओके, तो तुम्हें पता है कि 12 घंटे 14 घंटे जॉब करना कितना मुश्किल होता है? क्यों करना चाह रहे हो इतनी जॉब? अ, मजबूरी है? बिल्कुल सर। बिल्कुल मजबूरी सर, तो नहीं मुश्किल होगी? बहुत होता है, हाँ। लेकिन बिल्कुल सर, मुश्किल बहुत होता है, लेकिन हम्म। एक्चुअली मुझे आदत है पहले से। जहाँ हम्म। पे मैं पहले पढ़ाता था, वहाँ पे मैं 10-12 घंटे, इवन हम्म। 14-15 घंटे भी हम लोग काम करते हैं। तो अगर मैं अगर मुझे काम करना है, तो सर इसके लिए मुझे टाइम को फिर वो नहीं देखना पड़ता बिकॉज़ इफ आई एम कमिटेड टू लर्न, इफ आई एम कमिटेड टू ऐड वैल्यू, हम्म। तो टाइम आई डोंट सी हाउ मच टाइम आई शुड वर्क, आई शुड ओके, ऐड वैल्यू एट द सेम टाइम। तुमने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, राइट? एंड यस सर। उसके बाद क्या कहते हैं, तुमने नेटवर्क मार्केटिंग भी ज्वाइन कर लिया एंड इंग्लिश को सिखाया भी 1 साल, नहीं, नहीं, कैसे? नहीं, नहीं, नहीं। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में आया था, तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, एक कंपनी को जॉइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी क्या नाम था सीखने का कंपनी मौका का? मिला था। कंपनी का सर सर कुछ डीएलएस करके था, कुछ ऐसे बहुत पुराना नाम था, अभी तो मैं हम्म। इतना कन्फर्मली याद नहीं है मुझे। लेकिन उस अच्छा। कंपनी के नाम और उस चीज़ से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं था क्योंकि मैं वहाँ पे सीखने जाता था। हर दिन जो मैं अच्छा, वहाँ पे क्लासेस अटेंड करता था, उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। क्या सीखा तो तुमने फिर वहाँ उसके पे? बाद मैं क्या क्या सीखा? लेट या सर सबसे पहले सर जब मैं कॉलेज में आया था तो हमारे कॉलेज के क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते थे तो मेरे अंदर कभी भी ये करेज नहीं था कि आगे से चल के कुछ बोलना। सबसे पहले जो मैंने पहली चीज़ सीखी थी वहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स। हम्म। उसके बाद मैंने अपनी हेजिटेशन को बहुत ज़्यादा रिमूव किया एंड कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया। ये दो हम्म। तीन चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी एंड पीपल स्किल जो बिहेवियर किस तरीके से लोगों से बात करें, किस तरीके से वो हम्म। एक फेस टू फेस इंटरेक्शन, आई कॉन्टैक्ट वो सारे मैंने वही हम्म। ओके, तो तुम्हें लॉकडाउन में इतना लंबा समय मिला था और सारी चीजें थी, लेकिन तुमने फिर बायजूस में ही क्यों अप्लाई करा? बाकी और दूसरी कंपनी में इतनी सारी, कितनी कंपनी में अप्लाई कर रखे हो? सर अभी तक तो मैंने किसी कंपनी में अप्लाई नहीं किया, बाकी में मेरा पहला हम्म। अप्लाई है ये। एंड लॉकडाउन में सर मैं जब घर पे था तो सबसे पहले मैं बहुत सारे टाइम बाद, बहुत लंबे टाइम बाद घर में था तो मैंने कम से कम काफ़ी टाइम अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड किया, एक अच्छा क्वालिटी टाइम। सेकंड फिर मैंने वहाँ पे बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया था। तो
तो मैंने जॉब के बारे में कभी नहीं सोचा था घर पे, मैं हम्म, फिर अभी जॉब करूँगा। हाँ, हम्म, जब लॉकडाउन बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो फिर मैं यहाँ सिटी में वापस हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा है कि एक नई ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ में काम करने का, और पहली कंपनी मेरी बायजूस ही है और इसी में मैं काम करना चाहता हूँ, यहीं पे करियर बना। अच्छा। सो अभी तुम मम्मी पापा तुम्हारे साथ रहते हैं? नहीं सर, मैं अभी अलोन। अकेले रहते हो, ओके। सो अगर आज तुम रिजेक्ट हो जाते हो तो क्या करोगे फिर? क्या प्लान करोगे? तुम्हारे पास तो कोई और प्लान भी नहीं है, तुमने कहीं अप्लाई भी नहीं कर रखा है, तो फिर क्या करोगे राइट तुम? सर। सर, मेरा प्लान ये रहेगा कि अगर मैं रिजेक्ट हो भी जाता हूँ, तो आने वाले 90 दिनों के बाद मैं फिर से अप्लाई हम्म, करूँगा। उस बीच में मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, जहाँ पे मेरा कुछ एक्टिव इनकम निकल के मैं हम्म। अपना यहाँ पे लाइफ को बैलेंस करूँगा। ये मेरा प्लान तो तुम अभी अगर रिजेक्ट हो जाते हो तो 90 दिन बाद दोबारा अप्लाई करोगे बायजूस में? है। एग्ज़ैक्टली सर, मुझे यहीं पे काम करना है तो और अभी इसी के अंदर मैं अप्लाई करूँगा। और तुम अप्लाई क्यों कर रहे हो बायजूस में? क्या क्या चीज़ों के लिए अप्लाई अप्लाई कर रहे हो? हाँ सर, पहली चीज़ सर, यहाँ पे मैं करियर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एक हम्म, जो बायजू कंपनी है, इट्स अ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, एडटेक हम्म, कंपनी। हम्म, और यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी है कि अपने करियर को भी बायजू के साथ में बिल्ड करें। हम्म, दूसरी चीज़ सर, यहाँ पे जो मेरा फील्ड है, वो एक हम्म, रिवॉर्डिंग फील्ड है। जितना मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, उतना अच्छा मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। हम्म, तो एक ऐसे फील्ड के अंदर मैं इसीलिए आना चाहता हूँ, जहाँ पे हर दिन कुछ नया हो, हर दिन कुछ नई टास्क मुझे मिले, जिसमें मैं अपना पूरा एफर्ट्स डालूँ एंड हम्म। कम टाइम में एक अच्छे रिजल्ट को क्रिएट करके कुछ रिकॉग्निशन भी लूँ। ये मेरा सर मेन ओके, ओके, ठीक है। सो बायजूस में ही अप्लाई क्यों करने की सोची? बहुत सारी इतनी सारी कंपनी है, तो इसी में क्यों अप्लाई करने की सोची? बिल्कुल सर। एक्चुअली सबसे पहली बात जो है सर, मैं हम्म, बायजू में इसलिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इन इंस्पायर्ड हुआ हूँ बायजू रविन्द्रन सर की स्टोरी से। उन्होंने हम्म, किस तरीके से एक कॉफ़ी कॉफ़ी स्टैंड से लेके, क्लासरूम से लेके एंड हम्म, स्टेडियम से लेके आज इतने पूरी दुनिया के अंदर में पहला ऐसी कंपनी बन गई है हम्म, बायजू, जो कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं और एक वैल्यू ऐड कर रही है लोगों की लाइफ के अंदर हम्म, में। इसलिए मैं कंपनी के जो प्रोस्पेक्टिव से नहीं, उनके जो मालिक की जो विज़न है, उनके जो हम्म, ओनर की जो विज़न एंड मिशन है, उस प्रोस्पेक्टिव से इस कंपनी के साथ में जुड़ना चाहता हूँ। इसमें मेरा ओके, भी कुछ रोल रहे, लोगों हम्म, की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें। ओके। सो अगर तुम्हें अभी केरला का लोकेशन दिया जाए, करोगे जॉब? बिल्कुल सर, केरला मेरी सबसे फ़ेवरेट जगह है, जहाँ पे मैं हम्म। बहुत पहले से भी जाना चाहता हूँ। तो इसलिए इससे बढ़िया और तुम क्या तो हो सकता पंजाब, तुम तो उत्तराखंड से हो, राइट? और है। साउथ इंडिया में तो लैंग्वेज नहीं चलती है, तो कैसे कर लोगे जॉब? वहाँ पे सर लैंग्वेज बैरियर है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम्म, इंग्लिश वहाँ पे चलती है। वहाँ पे हमारा जो देश का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, हम्म, 94.6% वो केरला का ही है। तो हम्म, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एजुकेटेड रहते हैं, तो हम्म, दे नो इंग्लिश लैंग्वेज। तो मेरा जो हम्म। पिछले 1 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पे मुझे काम आ सकता है। तो मैंने इंग्लिश के ओके, अंदर में वर्क ओके। आई विल लेट यू नो आफ्टर 2 days। किया सर। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक सर, यू थैंक सो यू। मच। बाय। सो नाउ कैन वी डिस्कस ऑन फीडबैक पार्ट? ठीक है। यस सर, डेफिनेटली। सो सी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने सामने सामने देख के पहचान ली कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा था। लाइक कुछ आपके नीचे कॉपी में लिखा हुआ है और आप उसको देख देख के रीड आउट कर रहे थे। ठीक है। नहीं सर, नहीं। ठीक मैं है। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि लिखा हुआ भी होगा, लिखा बहुत कुछ है, मैंने स्क्रिप्टिंग भी बहुत हाँ, की है, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं देखा। स्क्रिप्टिंग नीचे रखी है या फिर साइड में डेस्क पे रखी है, वो मुझे दिख रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे फीडबैक दे रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। आई हाँ, एम नहीं, गिविंग अ बिल्कुल आपने सही फीडबैक। कहा। आई एम गिविंग अ फीडबैक, ठीक है। ये चीजें उसके राइट, सामने राइट। करोगे तो पहचान लेगा। मेरे हुँ, सामने हुँ। कर लिया मैंने, मुझे पता है, लेकिन मेरे से ऑनेस्ट तो रहो एटलीस्ट। ठीक है। नहीं सर, आई एम ऑनेस्ट सर, मैं मेरे को ऐसा नहीं करना है। हाँ। मैंने सो स्क्रिप्टिंग की ये है, काफ़ी ये स्क्रिप्टिंग की है, मैंने किस ये तरीके से फीडबैक बोलना है। दे रहा हूँ कि ये चीज मत करना कि हुँ, कॉपी नीचे रखी है बार बार उसमें देख के बोल रहे हो, सो दैट विल नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, वो चीज राइट, एंड हो राइट। जाएगी। ठीक है। दूसरी हुँ, चीज हुँ। है कि बुरा भला जो कहेगा ना वो तुम्हें तोड़ने के लिए बोलेगा, राइट? जैसा कि मैंने बुरा, और वहां पे तुम ना बहुत वो हो गए थे जब मैंने बोला ना कि तुम इंग्लिश करके आए हो, क्या करके आओ। सो आई वॉज ब्रेकिंग यू। ठीक है। एंड यू आर गेटिंग लाइक, क्यों ऐसे बोल दिया मेरे भाई, वो ईगो पार्ट आ रहा था, राइट? वो बिहेवियर आ रहा हाँ, था, हाँ, वो हाँ। नहीं आना चाहिए, हुँ, क्योंकि वो आ रहा था दैट हुँ। मीन्स वो रिजेक्ट हो जाएगा तुम।
कुछ भी अगर मैं बुरा बोल रहा हूँ ना, सो यू हैव टू अप्लाई, हाँ, यू हैव टू टेल पोलाइटली, ठीक है। यू ओके। आर गेटिंग कि तुम वो हो रहे थे अंदर से, तुम्हें लग रहा था कि ये मुझे बुरा क्यों बोल रहा है, व्हाई इज टेलिंग समथिंग दैट आई हैव नॉट डन दैट, और मैं वो चीज का वो मेरे अंदर है नहीं, लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये चीज राइट, तो राइट। यू आर, आप ब्रेक हो रहे थे पता है, आपके फेस हाँ, से दिख वहाँ रहा पे था एक आप। जगह पे हुआ था। हाँ, वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर हो गए तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर आएंगे कि ये तो मुझसे ऐसे बात कर रहा है, मैं कैसे काम करूंगा। तो वो चीज नहीं हाँ, आनी हाँ, चाहिए, हाँ। ठीक है। दूसरा ये है, हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है। और तीसरा ये है कि जो चीजें है ना, जैसे मैं जैसे बोल रहा हूँ, तो मैं बार बार तुम्हें फंसाने की ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हें क्या है कि पोलाइट रहना है और चीजों को बताना है, तुमने अच्छा बताया, ठीक है। वो कुछ चीजों पे ऐसा भी करना है कि ठीक है, चीजें तुमने जैसे शाहरुख खान से रिलेट कर दी, तो ऐसे भी एकदम सही उस चीज पे मत स्विच कर जाओ जो कि उससे रिलेटेड ही नहीं है, राइट। को रिलेट होना हाँ, चाहिए, ठीक है। हाँ, हाँ, कोरिलेशन हाँ, नहीं हाँ। टूट गया तो फिर मैं तो यही बोलूंगा ना कि भाई मैं पानी की बोतल तुम मुझे बेचने आए हो या शाहरुख खान के सपने दिखाने आए हो, हाँ, राइट। हाँ, हाँ, हाँ। सो रिलेशन भी ऐसा एग्जाम्पल देना है कि उससे रिलेट करे, ठीक है। और तीसरी चीज हाँ, ये है हाँ, कि हाँ, ना, हाँ। कोई भी चीज है तुमने अच्छी से करी है, राइट, बट ना उसको ना इस तरीके से रिप्रेजेंट मत करो कि हाँ तुम उसमें, जैसे कि तुमने इंग्लिश के बारे में बोला कि 100 से ज्यादा, एंड उसमें सोचने वाली बात है कि तुमने 4 महीने का कोर्स सीखा था, ठीक है। एंड उसके बाद हाँ, तुम हाँ। कह रहे हो कि मैं सिखाने लग गया। सो यहाँ पे इस तरीके से मत बोलो कि सामने वाले को लगे कि तुम फेक बोल रहे हो। इस तरीके को हाँ, प्रेजेंट हाँ, हाँ। करने का एक तरीका ये है कि सर मैंने क्या कहते हैं चीजें पढ़ी सीखी पहले, एंड आई फील लाइक कि आई हैव सॉ सम चिल्ड्रन, ठीक है, आई हैव सॉन सम चिल्ड्रन एंड दे वर लाइक कि दे वांटेड टू लर्न समथिंग, सो आई बीइंग अ हेल्पिंग हैंड, मैंने उनकी हेल्प करी, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है ना। हाँ, और हाँ, हाँ। वहां पे हम उसमें ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने 4 महीने सीखा एंड मैंने 1000 बच्चों को सिखा दिया, ठीक है। वहां पे हाँ, एक हाँ, हाँ। चीजें बोलने के उसमें समझ आ रहा है ना कि तुम अपनी चीजों को कैसे बोल रहे हो, राइट। सो उस हुँ, चीजों हुँ, को हुँ। मोल्ड करके बोलना भी एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। एंड जो भी हाँ, चीजें हाँ। है ना, वो एक तरीके से तुम्हें डिप्लोमेटिक होना चाहिए। तुम जो भी आंसर क्या क्या बोल रहे हो ना, वो सब ऐसा लग रहा है ना कि सारी स्क्रिप्टेड हो रही है, ठीक है। वो तुम्हें छूटता ही कहीं अच्छा। ना कहीं ये सब बोल देगा कि तुम यूट्यूब से देख के आए हो, कहीं तुम पढ़ के आए हो, ठीक है। हाँ, हाँ। चीजें ऐसी हैं, वो चीजें थोड़ी हुँ, करेक्ट हुँ। करो। बाकी ओवरऑल ठीक है, ठीक है। बाकी ओवरऑल तुम सेलेक्ट तो हो जाओगे मेरी तरफ से, तो मुझे सही लग रहा है। लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने फीडबैक बताया है ना, तो ये चीजों पे ध्यान रखना, ठीक है। हुँ, 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 हुँ। ओके। और कुछ ठीक है, ठीक है। कुछ और पूछना है? इसमें जैसे जैसे वो बहुत सारे नेगेटिव पूछेंगे तो मतलब उसमें क्या करना नेगेटिव पूछ रहे हैं ना, क्या नेगेटिव पूछा है है? बताओ। जैसे मतलब नेगेटिव मतलब जैसे कि तुम नहीं कर पाओगे या मतलब हाँ, तो जैसे मेरे पास टाइम वो भी तो मैंने बहुत कम बोला, मैंने तो बहुत कम बोला। वहां पे तो वो अच्छा। तुम्हें इतना बोल देंगे कि तुम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि भाई मैं अगर सेल्स के लिए हायर कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी है, तो मैं तो वही देखूंगा ना कि 100 में से 5 भी ऐसे बंदे निकल आए जो हाँ ये करने के लायक है, तो मैं तो उन्हीं को लूंगा ना, हर मैं दूसरे एक चीज़ तीसरे और को तो पूछ नहीं रहा था ना। लूंगा, हुँ, राइट। हुँ, हुँ। जैसे कि मतलब मैं आपने बोला मुझे ये कोर्स सेल करो, हाँ। तो वहाँ पे जैसे कि पर्सन पहली बारी में जैसे हम उससे बात कर रहे हैं, तो हम्म। इतना नेगेटिव तो कस्टमर वैसे होता नहीं है कि जैसे सीधे बोल देता है कि भाई क्यों नहीं मेरे होता पास है? टाइम नहीं कि है। क्यों नहीं होता है, क्यों ऐसा क्यों सोचा कि नेगेटिव नहीं होता है, ये क्यों सोच रहे हो? जैसे नेगेटिव हो एटलीस्ट मतलब 1-2 जाए। सेंटेंस। हाँ बताओ। हाँ, 1-2 सेंटेंस तो बात हो ही जाती है ना कि सर गुड मॉर्निंग ये वो तो इतना तो हो ही जाता है मतलब ना। हाँ तो तो ठीक है, जैसे मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेगेटिव हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने हुँ, बोला हुँ। जैसे अभी हमारा मामा वाला केस रहा था, ठीक है। हाँ, आपने हाँ, हाँ, बोला हाँ। कि अब मैं आगे क्या ही बात करूंगा, राइट। हाँ, हाँ, हाँ। उस तरीके का जवाब तो हाँ, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना, वरना तो आप कंपनी में आके ये भी बोल दोगे कि सर वो तो ऐसे क्लाइंट जो था वो ऐसे बोल रहा था, तो मैं आगे क्या ही उससे बात करूं। तो वो चीज ऐसे मत तो बोलो ना, तुम इंटरव्यू दे रहे हो, राइट। तो उस चीज हाँ, को हाँ, इस, हाँ। तुम अभी इंटरव्यू दे रहे हो, सीख नहीं रहे हो या फिर सेल नहीं कर हाँ, रहे हो, हाँ। तुम अभी इंटरव्यू दे रहे हो, तो हाँ, तुम्हें हाँ। फोकस करना है इंटरव्यू में। तुम्हें अपना एफर्ट्स अच्छा। दिखाना है कि तुम ट्राई कर कितना कर रहे हो, तुम्हारा अप्रोच कैसा है, राइट। यहाँ पे ओके, ये चीजें मत ओके। देखो कि मैं तो इसलिए बैठा हूँ ना तुम्हें तोड़ने के लिए, ठीक है। हाँ, 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 आई एम हाँ। हेयर टू हाँ, हाँ। हायर यू, नॉट टू मैं तुम्हें सेल ही करवा दूं, मैं तुम्हें बोल दूं ये हाँ, चीज हाँ। तुम मुझे सेल कर ही दो, ठीक है। हाँ, 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 हाँ। मैं तुम्हारे हाँ, हाँ, हाँ। दिमाग के साथ प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ओके, मुझे ओके। मतलब ओवरऑल मुझे चीजें वहाँ पे देखनी है लास्ट ना। तक
मुझे लास्ट तक वहाँ पे मतलब अपने उससे हाँ वो रहना टिकना है। तुम ओके गिव अप ओके कर ओके। रहे हो तो फिर मैं ये सोचूंगा कि तुम गिव अप कर देते हो, तो सेल्स में गिव अप करने वाले बंदे नहीं चाहिए होते हैं। ये ठीक भी है, है, राइट राइट राइट। सो हाँ ये हाँ। 14 आवर्स जॉब होती है, ठीक है, हम्म, 12 आवर्स भी नहीं होती है। इट्स लाइक अच्छा। कि नेवर गिव अप वाले ही लोग चाहिए होते हैं, हाँ हाँ अदरवाइज हाँ। कोई फायदा नहीं है ना जाने का। ठीक है, नहीं और नहीं कुछ? बिल्कुल हाँ। हाँ मतलब मैं ये समझा कि क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था कि जब अगर वो मुझे पूछेंगे तो मुझे वहाँ पे एकदम से मतलब अपने उस चीज पे अडिग रहना मतलब कि बिल्कुल कि मतलब उनको उनसे बात कन्वर्सेशन करते ही पोलाइटली रहना। रहना है और उसको हाँ हाँ एक अपनी एफर्ट्स डालनी है, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। ओके, हाँ हाँ सर ठीक है, नो हाँ प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आपसे ये ऐसे कर सकते हैं। हाँ आप अगर अभी बिजी हैं, तो वैसे जैसे आपने टाइम पूछा था, तो वो मैंने एफर्ट्स देखा ना कि आपने किस तरीके से चीजें को पूछा है। ठीक है, एफर्ट्स देखा। हाँ अब हाँ आप सडनली मुझे कह रहे हो कि सर आगे तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आई एम बी हाँ लाइक हाँ कि ये क्या हो रहा है, तुम ये क्या कह रहे हो। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो तो मैं यही राइट देखूंगा राइट ना तुम कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। ठीक है, राइट राइट राइट। चलो। तो ये हम्म, पहला इंटरव्यू जो होगा वो तो टेलीफोनिक होगा, वो कल मॉर्निंग में कह रहे हो। एंड उसके बाद जो दूसरा राउंड होगा तो तीसरा राउंड या दूसरे राउंड में मतलब क्या अंतर होगा? वही होता है कि पहला राउंड जो होता है वो तो टेलीफोनिक हो गया, दूसरा राउंड जो हो गया वो थोड़ा एक रहता है कि तुम चीजों को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, मतलब उसमें तुम्हें हाँ ये क्वालिटी देखी जाएगी, तुम कस्टमर को कैसे जज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पेइंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें। ठीक है, तीसरा हाँ जो हाँ होगा हाँ शायद से वो तुम्हें प्रेशर, जैसे ये मैंने करा ना, ये मैंने तुम्हें तोड़ने पूरा तोड़ ही दिया था। मैं चाहता तो तुम्हें बहुत हम्म, अच्छा ले सकता था, बट अब मैं तुम्हें अभी ब्रेक करना इसलिए चाहता हूँ कि ताकि तुम वहां पे ऐसा ना फील करो कि क्या हुआ मेरे साथ, राइट। हाँ हाँ दैट हाँ। इज नहीं वाई। नहीं ये जरूरी है ये जरूरी ठीक है, तो है। मैंने अभी तुम्हें इतना तोड़ ठीक दिया है कि ठीक है तब तुम ठीक है। वहां पे चीजें हैंडल कर लोगे, राइट। वो हाँ थॉट ही हाँ नहीं 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 आना अभी चाहिए, मुझे वो काफी वो पता भी चल गया ना। वही नहीं लगना चाहिए, ऑफेंड नहीं होना चाहिए कि ऑफेंड नहीं होना चाहिए, ये सारी हाँ चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हाँ चीजें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें शायद अब हाँ तुम्हें हेल्प करेंगी। ओके, सो हाँ फॉर द नहीं टाइम मुझे बिंग, पहली बार पता चला। for the time being, let's stop these things. Okay, so I'm putting this video on YouTube. So guys, if you find anything कि इसमें ऐसा बुरा सा वो था, तो बट दिस इज ओनली फॉर मॉक इंटरव्यू, दिस इज नॉट रियल इंटरव्यू। ठीक है, रियल इंटरव्यू इससे भी अलग हो सकता है। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप इस वीडियो को देख के अगर आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, सो इट्स नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। आई एम हेयर ओनली टू शो यू समथिंग कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें ट्रस्ट हो, सो यू कैन गो इन टू दिस, एंड तुम सब चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही देना। ठीक है, सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। एंड माही, आई होप कि तुम वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन वाला वो जो झंडा गाड़ के आओ। ठीक है, अच्छे से करके आओ। चलो ठीक है बाय, ठीक है। मिलते हैं, बाय।